आप लोग सुन पा रहे हैं? बोलो बोलो बोलो. Can someone just unmute and speak up something as well? So I'm sure that uh, I can hear you all as well. That would help. Yes, sir, you're audible. Yeah, yeah, cool. Uh, Perfect. Chalo. In that case, we can get started. Yeah, just give me a second. I hope you all can see my screen as well. Yeah. Um, बताओ screen दिख रही है ना? बोलो बोलो बोलो. Tell me guys, screen visible to everyone? बोलो यार. हाँ खो जाते हो. Tell me, guys. Can you all see my screen? The writing pad visible to you? Yes, sir, it's visible. Chalo, perfect. In that case, we'll get started. ठीक है. तो I'm assuming for all of you, this is your first actuarial paper as per se, है ना? मतलब आप लोग ने जितना मुझे बोला गया, आप लोग ने अभी ये सेट क्लियर किया है, so congrats on that guys. But yeah, will so this paper CS1 is your sort of the first paper that you have for this subject called actuarial statistics. ठीक है. आप लोग ने सबने क्लास 11 12 में स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा ही होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस. बताओ हाँ कि ना? हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. याद नहीं होगा, वेरी अंडरस्टैंडेबल. मतलब 2-3 साल हो गए होंगे, बट 1-2 साल हो गए होंगे, बट एक मतलब ये तो याद है ना कि कुछ ऐसा पढ़ा था. बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस, यस और नो. बोलो बोलो बोलो. स्टैट्स पढ़ा हुआ ना 11 12 में? हाँ, पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। पढ़ा हुआ ना, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. राइट. तो वही स्टेटिस्टिक्स को यूज करेंगे. ठीक है. तो पहले तो आज अपने 2-3 क्लास है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी देखेंगे, बेसिक स्टेटिस्टिक्स देखेंगे. ठीक है. उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे. जो हमने पढ़ा हुआ है वो अपने को थोड़ा बहुत याद है कि नहीं वो देखेंगे, है ना. और फिर उसी को और थोड़ा एडवांस करेंगे. राइट. सो वी आर हियर टू लर्न न्यू थिंग्स. राइट. सो थोड़ा स्टेटिस्टिक्स में उस नॉलेज को और आगे बढ़ाएंगे. एंड नॉट जस्ट दैट, इवेंचुअली वील ऑल्सो see how we can relate that to uh, like the world of actuaries, right? So if I were to put it simply, nowadays actuaries work in like very varied fields, not just in insurance, but like primarily if I talk about it, we'll try to relate how we can connect whatever we talk about in statistics back to basic insurance, basic life insurance. ठीक है. तो शुरुआत के 2-3 चैप्टर्स हो सकता है मतलब वैसा ना लगे, अपने एकदम स्टेटिस्टिक्स में घुसे घुसे रहे, नई नई चीजें सीखें, बट eventually you'll see how we can connect all of these concepts to the world of insurance and so. Okay, does that make sense? Yeah. So are you all aware कि you have a couple of papers here? You have something called paper A and you have paper B, right? uh, what is paper A, paper B? Paper A is theory and paper B is R programming. ठीक है. So when it comes to CS1 exams जो कि मई में next scheduled है for IIA, right? You'll have exams on 2 days. एक दिन ये मेरे ख्याल से if I'm not wrong 3 hours 20 minutes का एग्जाम होता है. ठीक है. And this here is a 100-minute exam. So 1 hour 40 minutes 45 minutes ऐसे करके कुछ एग्जाम होता है. Right? इस दोनों 100 मार्क्स के होते हैं. सो बोथ आर फॉर 100 मार्क्स ईच, बट स्केल डाउन किया जाता है. इसको 70 पे स्केल डाउन किया जाता है, इसको 30 पे स्केल डाउन किया जाता है. सो दे टेक सॉर्ट ऑफ अ वेटेड एवरेज एंड फिर आपको देखते हैं कि वो आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो. ठीक है. क्या ये बात क्लियर है? बताओ सबको. यस और नो दैट द कोर्स इज बीइंग स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. पेपर ए है, that is the theory portion. So like now not a pen paper exam nowadays, so you have some sort of like typed exams. आपको सेंटर पे जाके टाइप करना होता है. that is paper A. and paper B proper programming based होता है. तो वो R Studio R programming करके एक programming language है, वो भी हम सीखेंगे. तो like the course is sort of split into these 2 parts. Does that make sense? बताओ हाँ कि ना? बोलो बोलो. ये पहला वाला चीज सबको क्लियर है? Yes, sir. Yeah. So in the course of the next few months, that is, the exam is in May, right? So we'll try to get done with our syllabus somewhere in April, right? कोशिश करेंगे April start first week तक हो जाए.
right? तो Feb March you have couple of 2.5 months for us to cover paper A and paper B syllabus. हमारे पास कुछ चैप्टर्स, अगर मैं चैप्टर्स को डिवाइड करने की कोशिश करूं, मैं ये देखता हूँ कि चैप्टर्स को 6 से 7 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ सारे चैप्टर्स को मिला के, राइट? So we'll try to think about it in a way that we have close to 9 weeks, right? And we need to like cover all of it in this, right? So कोशिश ये करेंगे कि हर एक पार्ट एक हफ्ते में कवर करते जाएं अपने, राइट? हैव यू ऑल गॉट, like I'm guessing you must have like applied for this course like in very recent, तो शायद आप लोग को वो सब नहीं मिला होगा अभी तक मटेरियल वगैरह, बट when you look at the material and revision notes and everything, there's a concept of something called revision notes here, ठीक है? किसी को पता है क्या क्या होते हैं ये रिविजन नोट्स या बुकलेट? सुना हो कभी किसी से? बताओ तो। ये बेसिकली क्या होता है, जो मैं कह रहा हूँ ना, 6 से 7 पार्ट्स चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं, तो ऐसे ही 6 से 7 बुकलेट्स होंगे और हर बुकलेट में पास्ट 10 years के क्वेश्चन होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बट दीज आर पास्ट 10 years ऑफ IFOA क्वेश्चन, राइट? फॉर एग्जाम्पल चैप्टर्स से 1 to 3, राइट, उसका एक बुकलेट बनाया हुआ है। उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स है उनके 10 साल के क्वेश्चन, राइट? तो जैसे जैसे हम ये पेपर ए के फॉर एग्जाम्पल 3 चैप्टर कवर किए, राइट, थोड़ा बहुत उसका आर प्रोग्रामिंग का भी देख लिया कि मतलब उसी चैप्टर का आर प्रोग्रामिंग में कुछ चल रहा होगा, ठीक है? तो जैसे जैसे हम ये दोनों पैरेलली साथ में चलाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये बुकलेट्स भी सॉल्व करते रहना है। हम भी क्लास में कोशिश करेंगे कि जो डाउट्स हो आपके लिए, राइट, सो दैट क्या होगा, आप साथ ही साथ आपके एक तरीके से IFOA के पेपर्स की प्रैक्टिस होते जाएंगे, राइट? तो मिड अप्रैल तक अपनी कोशिश करेंगे कि क्लास में ये थ्योरी भी हो जाए, राइट? वी ऑल्सो गेट डन विद द आर वाला बेसिक्स एंड आर के एक्सरसाइजेस जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास सिलेबस में, एंड प्रैक्टिस ऑफ सम्स फ्रॉम दीज बुकलेट्स, सो दैट आप लास्ट एक महीना आई के पास्ट पेपर सॉल्व करने पे फोकस कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? ये रफ आउटलाइन कोर्स का कि हम क्या यहाँ पे डील करने पा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डील विद वेरियस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। इट्स डिवाइडेड इनटू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, व्हिच इज योर आर प्रोग्रामिंग। यू हैव बोथ दीज एग्जाम्स। अगर मैं ब्रॉड, ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल देखूं तो इसको 6 से 7 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ऑफ चैप्टर्स, राइट? एंड देन यू हैव रिविजन नोट्स बुकलेट्स फॉर ईच ऑफ दीज पार्ट्स, जिसको अपने साथ साथ सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? बताओ सबको, किसी को कोई भी दिक्कत? एनी क्वेश्चंस गाइस? बताइए हाँ कि ना। यहाँ तक सब, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल? एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी डाउट्स? बोलो बोलो, एनी कमेंट्स, एनीथिंग? ऑल गुड? बताइए यार। ठीक है, बताओ बताओ क्या हुआ यार? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? और सब बताओ, यशी, संस्कृति, संचिका, ध्वनि, समृद्धि, ऑल गुड? टेल मी गाइस, मे बी अ थम्स अप, यस, नो, एनीथिंग वर्क्स फॉर हाँ मी? सर। Yes, Yeah, sir. all good. चलो, बढ़िया, cool. In that case, today we'll begin with what I'll tell you. Today we'll sort of begin with the basics. Okay. So there'll be some things जो आप लोग ने already पढ़ा हुआ होगा, कहीं सुना हुआ होगा क्लास 11 12 में या कभी ना कभार। थोड़े से वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे एंड एक दो नई चीज सीखेंगे, बट विल कीप इट लाइट टुडे, ठीक है? मैं ये नहीं चाहता कि अपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस करें। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बेसिक्स वर्कशीट, जो आप लोग को डैशबोर्ड नेविगेट करना समझ में आ गया क्या? ऑन बोर्डिंग के वीडियोस अगर आप लोग ने देख ली होगी तो वो समझ में आ गया होगा। एक बेसिक वर्कशीट करके है, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आज अपने रिवाइज कर लेंगे, तो आप लोग है ना ये बेसिक वाली वर्कशीट थोड़ा बहुत मतलब रिवाइज कर सकते हो। उसमें और कुछ नहीं है, जो आप लोग ने क्लास 11 12 में से जो स्टेटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स किए होंगे ना, वही सब रहेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, सो दैट क्या होगा, आप तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो एक कंफर्ट लेवल जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो क्या क्या है बेसिक्स में, देखते हैं। सबसे पहला चीज जो अपने रिवाइज करेंगे, जिसका नाम था, इफ यू ऑल रिकॉल दिस, समथिंग कॉल्ड सैंपल स्पेस। याद है सैंपल स्पेस क्या होता था? नाम सुना सुना तो लग रहा होगा, बट कुछ याद आ रहा है क्या कि क्या होता था ये सैंपल स्पेस? एनीवन? क्या होता था, किसी को याद आ रहा है?
Set of possible outcomes. एग्जैक्टली जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कॉइन को टॉस करूं तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या है बताओ तो, टेल मी गाइस। Heads and tails. Exactly, HT, right? Similarly, if I roll a die, my set of outcomes is 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So sample space is what? Sample space is sort of the set of all possible outcomes is called the sample space, right? For example, if it's about rolling a die, it's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6 for rolling a die. Yeah, that's what sample space is about. Now, what is an event? Like event is sort of a subset of a sample space. Subset का क्या मतलब होता है? Anyone? Any guys, what is subset? बोलो बोलो. For example, rolling a die में क्या मैं कह सकता हूँ getting an even number, right? Getting an even number is an event, right? उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 2, 4, 6, right? आपने डाई रोल किया, 2, 4, 6 आना एक इवेंट है, राइट? कोई एक ऑड नंबर आना इवेंट है, या फिर अ नंबर ग्रेटर देन 7 आना वो एम्प्टी इवेंट है, राइट? एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि जब एक नॉर्मल डाई रोल करोगे ग्रेटर देन 7 नहीं आ सकता, बट लेस देन 6 आना एक इवेंट है. क्लियर है? बताओ हाँ कि ना? एनी क्वेश्चंस? Yes, ऑल it's गुड? clear. या फिर क्या है लास्ट चीज जो हमने पढ़ा था दोनों चीज को यूज करके, वो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बोल के. ठीक है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? देखो तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज व्हाट? अगर मैं किसी इवेंट ए, फॉर एग्जांपल आपने इवेंट को ए से डिफाइन कर रखा है कि गेटिंग like getting an even number when you roll a die, then what can we say? Probability of a क्या होगा? Favorable number of outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है ना? बताओ हाँ कि ना? Does that make sense guys? देख लो लिख लो सब लोग में भी, कोई भी दिक्कत है तो बताओ. Any questions? बताओ. All good guys? Yes, sir. या चलो, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, अब अपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, इस नए कॉन्सेप्ट का नाम है रैंडम वेरिएबल. कुछ लिखने के पहले ना थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रैंडम वेरिएबल होते क्या हैं. अच्छा, आपने हमेशा वेरिएबल करके तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही है ना? बताओ, क्लास 11 12 में वेरिएबल, क्लास 11 12 क्या 6 7 से वेरिएबल के बारे में पढ़ते आ रहे हो. क्या होते हैं वेरिएबल्स? एनीवन? बोलो तो. एक्स वाई ये सब वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं ना. फॉर एग्जांपल हमने ये सेट्स ऑफ इक्वेशंस को वेरिएबल्स से इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश की. फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स 80, एक्स माइनस वाई इक्वल्स 20, तो आप क्या कर देते? 2x इक्वल्स 100 करके x इक्वल्स 50 की वैल्यू निकाल देते हैं, y इक्वल्स 30 की वैल्यू निकाल देते हैं. बताओ हाँ कि ना? याद है सबको? तो अपने ये जो एक्स एंड वाई जो होते थे उसको क्या बोलते थे? वेरिएबल्स कहते थे. करेक्ट? अग्रीड गाइस? यस और नो? अब मैं क्या कह रहा हूँ उसके आगे एक और शब्द लगा दे रहा हूँ. कौन सा वर्ड लगा दे रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये वेरिएबल कैसा है? रैंडम है. मतलब अभी तक क्या होता था, हम जब वेरिएबल्स की बात करते थे ना, हम एक चीज देखो अच्छे से ध्यान दो, x की वैल्यू एक तरीके से फिक्स है ना. गिवन दिस सेट ऑफ इक्वेशंस x विल टेक द वैल्यू 50, y विल टेक द वैल्यू 30. बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस, यस और नो? अग्रीड? Right? So can I say the values of x and y are sort of fixed, right? Now I'm saying what? I'm saying I'll choose a variable. However, that value that the variable takes is not fixed. It's random in nature. कैसे होते हैं variables? What, like how do they look like? We'll talk about them. But can you visualize or can you try to imagine what is happening? एक वेरिएबल है, अब मैं कह रहा हूँ इसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, मे बी वो मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है.
मे बी वो वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 4 5 मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, मुझे ये नहीं पता वो कौन सा वैल्यू लेगा, बट वो ले सकता है मल्टीपल वैल्यूज। जैसा जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, टॉसिंग अ कॉइन, राइट, हमने अभी बात की ना, राइट यार, चलो टॉसिंग 2 कॉइन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब टॉसिंग 2 कॉइन्स होता है तो सैंपल स्पेस कैसा दिखता है बताओ तो, बोलो तो सैंपल स्पेस कैसा दिखता है टॉसिंग 2 कॉइन्स में? H H, हम्म head heads, tail हम्म tail, हम्म head tail, tail head. परफेक्ट, चलो बढ़िया। अब मैं देखो किस तरीके से रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूं। मैं कह रहा हूं कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है which gives me the number of heads that you get। जब आप एक कॉइन उछालते हो, what is the number of heads when I toss 2 coins? ओके, सो इस तरीके से मैं इस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं। अच्छा, अब सोचो एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकती हैं, एनीवन? अगर आपने एक कॉइन 0, उछाल 1 दो, and 2. परफेक्ट, क्या हो सकता है? अगर आपका टीटी आया तो 0 हेड्स, एच एच आया तो 2 हेड्स, एच टी या टी एच आ गए तो 1 हेड्स। अग्रीड? टेल मी गाइस, यस और नो? बताओ हाँ कि ना, क्या ये बात सबको क्लियर है? सो हियर आई हैव अ वेरिएबल एक्स that can take not one but multiple values, and until and unless you actually toss those 2 coins, do you know what will be the value of x? बताओ तो, क्या आपको x का वैल्यू मालूम है कॉइन को टॉस करने के पहले? नहीं। सो इट इज व्हाट, इट इज रैंडम इन नेचर, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। डज दैट मेक सेंस? बताइए हाँ कि ना, बोलो। एवरीवन एल्स अग्रीड? Yes, sir. Yeah, chalo. Acha. So how do I define these random variables? So what I'm essentially trying to do when I'm saying a random variable is, सबसे पहले तो ये numeric in nature होता है ना? So what you are doing, you're trying to associate some numerical value, some number, right? I won't say numerical value, some number to a sample space. तो मैंने सैंपल स्पेस को ध्यान से देखा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऊपर वाले सैंपल स्पेस को देखूं, मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं, नंबर ऑफ से समथिंग लाइक what, number of odd numbers, या number of even numbers when you like where you get an even number or an odd number, right? कुछ मतलब failure या 0 या 1 जैसा कर सकता हूँ। if you get a even number 0, if you get an odd number 1, वैसा कुछ x को बना सकता हूँ, है ना? so मतलब you are trying to associate what, associate some sort of number to your sample space, and because these are things which are based on some event, तो वो रैंडम इन नेचर होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताओ हाँ कि ना, राइट? अच्छा, अज्यूमिंग ऑल दीज 2 कॉइन्स दैट आई एम टॉसिंग आर फेयर, फेयर मतलब हेड और टेल आने के जो संभावना है वो सेम है, तो एक बात बताओगे, क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि एक्स का 0 आने का जो चांस है, एक्स का 0 आने का चांस मतलब दोनों कॉइन्स पे टेल आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होता है बताओ तो कोई? 1 by 4. एनीवन? 1/4, परफेक्ट, राइट। सिमिलरली 1 और 2 का भी आप लोग प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, 2 का भी सेम लॉजिक है, 1/4, है ना? 2 हेड्स कब आएंगे? जब एच एच आएगा, तो हाफ इंटू हाफ। 1 का क्या प्रोबेबिलिटी है? Half. एवरीवन अग्रीज टू दिस? 1/4 प्लस 1/4, एच टी वाला भी, टी बाई एच वाला भी, राइट? तो ये हाफ हो जाएगा। बताओ हाँ कि ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि अभी तक हम जिन वेरिएबल्स की बात करते थे, एक्स स्मॉल एक्स प्लस वाई, उनको हम स्मॉल लाइक लोअर केस से डिनोट करते थे, नॉट कैप लेटर्स, राइट? When it comes to these random variables, one essential change that you need to realize is we are using what? Uppercase or capital letters to denote them because they are random in nature. क्या ये बात क्लियर है? बताओ हाँ कि ना? Yeah, that's the first difference that you can observe.
द सेकेंड थिंग दैट आई एम सेइंग इज, अच्छा ये एक इवेंट रिलेटेड तो है, ये जो x012 है, दिस इज रिलेटेड टू सम इवेंट, राइट, HHTTH, राइट? So there must be a logic as to how I can find the probability. क्योंकि I know now probabilities के साथ तो अपने काम किया हुआ है पहले, तो अपने probabilities figure out करके ये कर सकते हैं कि x की 0 आने की क्या, although I know it's random in nature, 0 1 2 randomly आएगा, राइट? कॉइन टॉस, दो कॉइन टॉस करने के पहले रैंडमली कुछ भी आ सकता है, बट देर इज सम प्रोबेबिलिटी अटैच टू इट। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो? ऐसे कुछ निकाल सकते हो, पहले सोचेंगे एक्स की सारी क्या पॉसिबल वैल्यूज है, सीरीज 0 1 2 है, फिर अपने इवेंट्स पे ध्यान देंगे और उस हिसाब से प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। बताओ हाँ कि ना? उसको अपने क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल स्मॉल एक्स। ओके, this thing right here, that the table that we have sort of created is called a probability distribution function. इस रैंडम वेरिएबल x के लिए आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह लो या टेबल बोल लो, आपने वैसा कुछ क्रिएट कर लिया। Does that make sense? Okay, all good guys, yes or no? Right? अच्छा, taking this a step further, okay, when it comes to all random variables ना, you can split it broadly into two main categories. Okay, क्या है वो कैटेगरी समझने की कोशिश करते हैं। तो if I talk about the two categories, there can be discrete random variables and there can be continuous random variables. तो मेन में दो प्रकार के रैंडम वेरिएबल्स के बारे में अपने पढ़ेंगे, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। एनी आइडियाज फ्रॉम द नेम? एनीवन वांट्स टू टेक अ गेस व्हाट डिस्क्रीट, व्हाट कंटिन्यूअस may be all about? Anyone guys? Discrete Discrete. random variable would be basically a whole number, like an integer, whereas a continuous random variable would be like it could take any number. राइट, ओके, फेयर इनफ। तो आप कह रहे हो जैसे हमने ये ऊपर लिखा नंबर ऑफ हेड्स, ये या तो 0 1 2 3 4 ऐसे ही होंगे ना? Yes, बताओ, sir. राइट? तो आपके एक्सेस क्या होंगे? एट डिस्क्रीट पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी होगी, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है ना? राइट? तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब आप आओगे एक्स की वैल्यूज यूजुअली आपको ऐसी दिखेंगी कुछ, या 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ऐसा कुछ, राइट? फिर 4 पे है, फिर 7 पे है, ऐसा कुछ, करेक्ट? प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगा? पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी होगा, राइट? पॉइंट वाइज मतलब प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 0 हमने निकाला ना ऊपर। एक बात बताओ, एक्स 0 से 1 के बीच में कुछ प्रोबेबिलिटी है क्या यहाँ पे? क्या आधा टेल आ सकता है? क्या आधा हेड आ सकता है? बताओ तो। नहीं आ सकता ना। 0 पे प्रोबेबिलिटी है, फिर सीधा 1 पे जाके प्रोबेबिलिटी है, बीच में कोई प्रोबेबिलिटी है? टेल मी गाइस, यस और नो? नहीं है ना? No. नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी पॉइंट वाइज एग्जिस्ट करती है, राइट? यहाँ पे कैसे दिखते हैं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आते आते आपके एक्स रेंजेस में डिफाइंड होंगे। फॉर एग्जांपल आप कहोगे 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8, इसका मतलब एक्स कैन टेक हाउ मेनी वैल्यूज, कोई बता सकता है? अगर मैंने कहा एक्स की वैल्यू 1 से 8 के बीच में है, तो कितनी वैल्यूज ले Infinite. सकते हैं? Exactly, infinite number of values. There's no limit on the number of numbers that are between 1 and 8, right? Infinitely many values ले सकते हैं, इसलिए usually continuous random variables को अपने ranges में बात करते हैं, ऐसे 1 से 5 के बीच में, वैसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है? तो इसमें probability भी जब आप measure करोगे, आप एक पॉइंट पे probability measure नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते probability of x equals 5 निकाल के दिखाओ। probability भी कैसे measure करते हो? इंटरवल वाइज करते हो या रेंजेस में करते हो। मतलब आप क्या कहोगे? फॉर एग्जांपल कहोगे यहाँ पे कि निकालो प्रोबेबिलिटी कि एक्स की वैल्यू 4 और 6 के बीच में हो, फॉर एग्जांपल। समझ में आई बात? बताओ हाँ कि ना? राइट? एग्जांपल्स कैसे? अगर अपने इंश्योरेंस के वर्ल्ड में आए, नंबर ऑफ क्लेम्स, एक पॉलिसी पे क्या नंबर ऑफ क्लेम्स, कभी 1.5 क्लेम आ सकता है क्या? या तो 1 क्लेम आएगा, या तो 2 क्लेम आएगा, या तो 3 क्लेम आएगा, 4 क्लेम आएगा, है ना? बट वही यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं लूं, अमाउंट ऑफ क्लेम जो होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम मतलब कि क्लेम का अमाउंट, राइट? ये तो डेसिमल्स में हो सकता है, कोई 100 रुपए 50 पैसे के लिए भी क्लेम कर सकता है, कोई 1 करोड़ 50 लाख के लिए भी क्लेम कर सकता है। अग्रीड? टेल मी गाइस, यस और नो?
बताओ हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है? तो दिस हियर इज सॉर्ट ऑफ द बेसिक लॉजिक दैट इज अबाउट रैंडम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ये बताओ ये सबको थोड़ा बहुत समझ में आया कि रैंडम वेरिएबल्स होते क्या? आई नो फॉर यू ऑल दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, द एंटायर वर्ल्ड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अस। जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे ना, सब में अपने इसके बारे में बात करेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स के साथ खेलते रहेंगे। तो द बेसिक ऑफ व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ये सबको बहुत क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई भी दिक्कत? बताओ बताओ। हाँ सर। चलो बढ़िया, ठीक है। देखो आज के लिए मैं यहीं पे पॉज करूंगा। दिस वाज मोर ऑफ लाइक एन ओरिएंटेशन क्लास फॉर यू ऑल, है ना। अपने क्लासेस वैसे तो डेली हैं ही, अपने कल भी सेम टाइम पे, परसों भी सेम टाइम पे। अपने थोड़ा थोड़ा करके अभी अभी 2-3 दिन थोड़ा सा स्लो रखेंगे, राइट। मैं आप लोग को एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, एक सॉफ्ट कॉपी सेक्शन में ना, देर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक वर्कशीट, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी सेक्शन में, स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में सॉफ्ट कॉपी में देर इज स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन है, उसमें सॉफ्ट कॉपी करके कुछ है, उसमें कुछ है बेसिक वर्कशीट बोल के, ठीक है। उस बेसिक वर्कशीट में जरूर से कुछ पहले है ना, उन्होंने बेसिक प्रोबेबिलिटी के 10-15 10-11 क्वेश्चन है, वो 10-11 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत हो तो कल मुझे बताओ। एक बार वो हो जाए तो कल अपने रैंडम वेरिएबल्स निपटा लेंगे, समझ लेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताओ सबको क्या करके आना है कल के पहले, बताइए हाँ कि ना। यस और नो गाइस, टेल मी, मेक सेंस यस टू सर। एवरीवन। चलो बढ़िया। आज अभी तक जो कि आज हमने कुछ वैसे खास कुछ किया नहीं है, आई केप्ट इट रियली लाइट टुडे कॉन्शियसली। बताओ आज जो किया उसमें किसी को कोई भी अभी तक कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत बताइए। ऑल गुड, कूल। तो कल भी सेम टाइम पे आना है, कोशिश करना टाइमली ज्वाइन कर लो यार प्लीज। विल ट्राई टू कीप इट मतलब 50-55 मिनट्स वाला रेंज में रख के विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, है ना। सो दैट इवेंचुअली व्हेन इट कम्स टू द एंड ऑफ द वीक अपने ये जो बेसिक्स के जितने भी लाइक कॉन्सेप्ट्स है ना, सब कवर कर लें। हो सकता है बीच में 2-3 चीजें मैं आपको कवर करने को कहूँ कि इसमें कर लो, क्या बोलते हैं, वीडियो से के कवर कर लो, बट मेरा कोशिश यही रहेगा कि अपने जितना हो सकता है लाइव क्लासेस में करें, ठीक है ना। कूल, परफेक्ट। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आई विल क्लोज फॉर नाउ, या टॉक टू यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।